Good morning, students. Today is 15th March, 15th April 2021, and I'll be taking discrete structures, trees, concept of trees. Now let's see what is brain teaser. Assume you are driving with your child and she is screaming for milk out of his Happy Meal. You haven't cleaned out the car in a while, so there are 9 milk bottles rolling around on the floorboards under your feet. One full, 8 half full, and a bit foul. Assuming you can pick up more than one bottle at a time in each hand. Using your hands as a balance scales, how many balances will it take for you to find the full bottle? Okay. एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो तो कार ड्राइविंग के टाइम पे आपके कार के अंदर बहुत सारी दूध की बोतलें रखी हुई हैं। वो दूध की बोतलें कितनी है? 9 मिल्क बॉटल्स हैं। वो 9 मिल्क बॉटल जो है वो कार में इधर उधर फ्लोट कर रही है, जिसमें से एक फुल भरी हुई है, 8 जो है वो हाफ फुल है, और हाफ फुल एंड अ बिट फाउल, खराब भी है उसमें से कुछ और आधी भरी हुई है, और एक ही है फुल। तो एट अ टाइम आप कितनी बोतलें एक साथ हाथ में उठा सकते हो? दिस इज द क्वेश्चन कि बैलेंस भी बना लो आप अपना कार का और बॉटल्स भी पिकअप कर लो। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन टू दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रीज। ट्री का कंसेप्ट कैसे होगा कि यू आर अ सिंगल पर्सन एंड यू हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। नीचे आपके पास में आप कितना फैल सकते हो, कितना नीचे तक जाकर आप वो जो 8-9 बॉटल्स है, 9 बॉटल्स है उनको पिकअप कर सकते हो, और आप कैसे अप्रोच करोगे उनको? दिस इज द प्रॉब्लम which has a solution as a tree. Now what is a tree basically? Let's see. तो जो हमारा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ट्री है, क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन हो एज अ रूट एंड यू वुड लाइक टू पिक अप ऑल 9 bottles such that you will get at least that bottle which is full and not foul. फुल मतलब अच्छी वाली फुल बॉटल है, फाउल मतलब खराब वाली 8 बॉटलें जो आधी भरी हुई है, उसमें से कोई भी नहीं चाहिए आपको, ये वाली चाहिए। ओके, let's see the definition of a tree. Let A be a set and let T be a relation on A. We say that T is a tree if there is a vertex V0 with the property that there exists a unique path in T from V0 to every other vertex A in A, but no path from V0 to V0. मतलब सेल्फ लूप नहीं है। ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है? V0 to V0 मतलब there is a vertex from that vertex to the same vertex, so no path from that to that, means there is no loop. तो एक ट्री स्ट्रक्चर है be a relation on a set A. T is a tree if there exists a vertex V0. कौन सा vertex है? V0 with the property that there exists a unique path in T from T0 to every other vertex. एक V0 एक vertex है, उस V0 vertex से unique path है बाकी सभी vertex के ऊपर, और V0 का V0 से जो भी vertex लिया है उसका खुद से खुद का path नहीं है। Okay, this is the definition of a tree. We need a way to describe a tree, specifically a rooted tree. What do you mean by a rooted tree? First, a rooted tree has a single root V0. एक single root रहता है V0, which is a vertex with absolutely no edges coming into it. उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा, उससे बाहर branching होगी, root से नीचे उसकी सब branches होगी. So the in degree of V0 is always 0. Out degree उससे जितने बाहर निकल रहे हैं नीचे के vertices होंगे. So every other vertex V in the tree has exactly one path to it from V0. So the degree of in degree of V is equal to 1. मतलब V0 की in degree कितनी होगी? 0. उसके next level पर आ गया तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 1. So there may be any number of paths coming out from any vertex. So it is being denoted as T of V0. T comma V0. So the root can be denoted as a root node is V0, and in the tree T, V0 is a root node. Okay. If T is a relation,
that is also a tree, then T must have the following characteristics. There are no cycles. Tree में cycles नहीं होती, मतलब self loop नहीं होता. So V0 is the only root of T. V0 is the only root from where all the branches begins. V0 is the root from where the tree begins. Tree जहाँ से शुरू हो रहा है वो V0 है. Okay. Examples of tree. Using the definition given above, determine which of the following examples are tree and which are not. Okay. Now, is this a tree? एक आपका रूट है, इससे निकलते हुए दूसरे हमने वर्टेक्स लिया. दिस इज वर्टेक्स. 3 वर्टेक्सेस आर देयर. इस 3 वर्टेक्स में से फिर से 3 निकल रहे हैं, इसमें से 3 निकल रहे हैं. सो इज इट अ ट्री? यस और नो? ट्री का डेफिनेशन क्या है? दैट देयर इज अ रूट एंड रूट का इन डिग्री कुछ भी नहीं है, आउट डिग्री है. ये देखो आउट डिग्री कितने हो गए? 3 हो गए. फिर ये लेवल 1 पर है. लेवल 1 पर इसका इन डिग्री, इसका इन डिग्री इस वर्टेक्स का 1, इस वर्टेक्स का इन डिग्री 1, इसका इन डिग्री 1. इन डिग्री हमेशा ये 1 है. ये देखो इस वर्टेक्स का भी इन डिग्री 1 है. इन डिग्री मतलब नंबर ऑफ द एजेस गोइंग इनटू इट. आउट डिग्री मींस नंबर ऑफ द एजेस गोइंग आउट ऑफ इट. तो इन डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज ऑलवेज 1 इन केस ऑफ अ ट्री. रूट का इन डिग्री हमेशा 0 रहता है. तो टेल मी, इज दिस अ ट्री? क्या ये ट्री है? हमने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा अंडर ग्रेजुएशन में. तो क्या ये ट्री है? ग्राफ थियरी में भी पढ़ा होगा. क्या ये ट्री है? Yes, ma'am. ओके. Yes. ओके. नाउ इज दिस अ ट्री? ये ट्री है क्या? ठीक से बताना, क्या ये ट्री है या नहीं है? जल्दी बोलो, यस और नो. इज दिस अ ट्री और नॉट? Yes, ma'am. Tree है. यस. क्यों है? देखो इसको मैं बनाती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8. ये ट्री है कि नहीं? एक रूट है, उसके ये चिल्ड्रन है. ये 8 चिल्ड्रन हो गए. अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो आपको ट्री दिखता है. बट अगर इस तरह का रहता है तो ये स्टार टाइप का दिख रहा है आपको. स्टार टोपोलॉजी जैसे रहता है. तो ये ट्री दिख रहा है. दिस एंड दिस बोथ द डायग्राम्स आर सेम. चाहे आप इसको ऐसे बनाओ चाहे इसको ऐसे बनाओ. अगर आप इसको फ्लेक्सिबल करते हो तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा. स्टिल दिस इज हैविंग इन डिग्री 0. ये रूट हो गया आपका. दिस इज योर रूट and the in degree of this is 0 and the out degree is 8. कितने निकल रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 वर्टेक्स निकल रहे. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्री. एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री. इज दिस अ ट्री? क्या ये ट्री है? क्या ये ट्री है? इज दिस अ ट्री? देखो आप डायग्राम बताओ, रूट कौन सा है इसमें अगर ये ट्री है तो? कोई लूप फॉर्म हो रहा है. ट्री में क्या होता है? लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए, सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, साइकिल भी फॉर्म नहीं होनी चाहिए. सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए, साइकिल भी नहीं होनी चाहिए. और रूट में इन डिग्री इज ऑलवेज 1. यहाँ देखो इसके अंदर ये क्या हो रहा है? इट इज गोइंग इन एंड गोइंग आउट फ्रॉम दिस. इट इज गोइंग इन एंड आउट. ऊपर भी जा रहा है ये. ठीक है. ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. ओके. ये देखो यहाँ से ये ऊपर आ गया वापस. ये वापस ऊपर जा रहा है. एरो अप जा रहा है. कैन वी कॉल दिस एज अ ट्री? यस और नो? नो No, लूप. ma'am. हाँ, नो लूप एंड नो साइकिल इज अ ट्री. लूप और साइकिल नहीं होता, तो दिस इज नॉट अ ट्री. इज दिस अ ट्री? माइक्रोसॉफ्ट ट्रबल शूटिंग विजार्ड. सोच के बताना, क्या ये ट्री है? देखो इसको बॉक्स में भी डाला हुआ है. दिस इज पुट अप इन अ बॉक्स. इट मीन्स if I make it like this, is it a tree? Yes or no? Is it a tree? Yes or no? Yes or no? जल्दी बोलो.
जल्दी बोलो, ट्री है क्या? ये देखो, दिस इज अ ट्री विद सिंगल नोड, ओनली वन नोड। ये ट्री ऐसी है जिसका सिर्फ एक ही नोड है, सिंगल नोड है। ये देखो एक ही नोड है, ये पूरा का पूरा एक नोड है। क्या ये ट्री है? दिस इज अ रूट नोड, अ ट्री विद ओनली रूट नोड। Yes or no? Yes, it is a tree. Okay. Now, is this a tree? For loop. For I is equal to 0 to 256. कितनी बार लूप चलेगा? 256. 0 से 256 मतलब 257 टाइम्स लूप चलेगा। This loop will execute how many times? 257 times. 257 times. इस हर एक वैल्यू ऑफ I के लिए, that is when I is 0, j is varying from 0 to 16. मतलब this is a nested loop. So I is 0, तो j is varying from 0 to 16. That means this loop will execute how many times? 17 times. ये command entry हुई, ये command entry हुई. Okay. Array I comma j, that is 0 comma 0, 0 comma 6, 0 comma 1, 0 comma 2, and then this is being multiplied, and then next of j and next of I. ओके, सो विल इट फॉर्म अ ट्री? क्या ये ट्री फॉर्म करेगा? कौन सा एरे क्रिएट हो रहा है ये? दिस इज विच टाइप ऑफ एरे वी आर क्रिएटिंग? एरे आई कॉमा जे, 2 डायमेंशनल 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या जो हमारा 2D Yes, एरे होता है, 2D एरे होता है, इज इट एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री? क्या ये ट्री का एग्जांपल है? क्या ये एक जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू इज लिंक्ड विद सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, थर्ड फोर्थ वैल्यू? लिंकिंग है या नहीं है? देखो यहाँ पर आई की पहले 0 वैल्यू थी, आई की जब 0 थी तो जे 0 टू 16 तक वेरी किया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देन आई बिकम्स 1, तो जे बिकम्स 0 टू अगेन 16, देन आई बिकम्स 2, जे बिकम्स 0 टू, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक आई की वैल्यू के लिए, फॉर एवरी आई वैल्यू जे इज वेरिंग हाउ मेनी टाइम्स? 16 टाइम्स। ये हो गया। फिर एक आई की वैल्यू के लिए जे कितनी बार? 16 टाइम्स वेरी कर रहा है। हर एक वैल्यू के लिए कितनी बार वेरी कर रहा है? 16 टाइम्स वेरी कर रहा है। सो कैन वी से दैट इज इट अ ट्री? ट्री कैसे बनाते हैं अपन? क्या ये ट्री है? यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री। ओके, नाउ इज दिस अ ट्री? देखो i is equal to 0 to 256 and j is equal to 0 to 256. अब यहाँ पर i और j मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर i और j, i 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, j प्लस हो रहा है। यहाँ i और j मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ ट्री। 2 डायमेंशनल एरे है। So 2 डायमेंशनल एरे is the implementation of a tree. Now let's see the definitions. Levels, all of the vertices located n edges from v0 are said to be at level n. देखो ये लेवल 0 होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कई बुक्स में आपको ये लेवल 1 भी दिखता है, पर मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा रहता है। तो यू विल कंसिडर दिस इज एट लेवल 0, रूट इज एट लेवल 0, then next is level 1, level 2, like this. So we have a formula which is used to calculate the number of the maximum nodes at each level. It is 2 to the power of level number, 2 to the power of L. L is, level is 0. So it is 2 to the power of 0 is how much? 2 to the power of 0. 0th level पे कितने maximum number of nodes हो सकते हैं? 1, that is root. This is at level 1. So 2 to the power of L, that is 2 to the power of 1. That is how many nodes are possible in this case? 2. Why here I am taking 2? If I say that the binary tree कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं एक बाइनरी ट्री में? बाइनरी ट्री इज अ ट्री विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, चाइल्ड नोड 2, 0, 1 या 2 बाइनरी में। बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री विच इज कंटेनिंग मोर देन 1, मोर देन 2 चिल्ड्रन, मोर देन 1, 0, 1, 2, 3, 4 कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो अगर मैं बाइनरी ट्री का फॉर्मूला बोलती हूँ तो बाइनरी ट्री का फॉर्मूला 2 to the power of level. दिस इज अ सिंपल ट्री, सो इट मे कंटेन एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर रूट पे एक ही नोड है, रूट के बाद नेक्स्ट लेवल पे 3 नोड्स है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कितने नोड्स हो गए?
3, 3, 6, 3, 9 and level 3 पे कितने nodes हो गए 1, 2, 3, 4, 5. So this is simply an example of a tree. This is not an example of a binary tree. Binary tree is a tree which is having maximum number of child as 2. maximum 2 हो सकते हैं, minimum 0, 0, 1, 2 इतने ही हो सकते हैं एक नोड को subsequent children. Now let's see what is a vertex. A vertex V is considered the parent of all the vertices connected to it by edges leaving V. So we call this as a root node. We call this as a parent node also because this parent is having 3 children. Now this is also called as a parent for these 3. इन 3 के लिए ये भी parent है, इन 3 के लिए ये parent है, इन 3 के लिए ये parent है, इन 2 के लिए ये parent है, इस एक के लिए ये parent है, इन 2 के लिए ये parent है. So a vertex V is considered the parent of all the vertices connected to it by an edge leaving V. उससे जितने connected edge हो रहे हैं उससे बाहर निकलते हुए वो उसके parent कहलाएगा. इससे निकलते हुए जितने edges हैं तो इसके लिए ये parent, इसके लिए ये parent, इसके लिए ये parent, इसके लिए ये वाला node parent कहलाएगा. A vertex V is considered the offspring of the vertex connected to the single edge entering V. सिंगल एज एंटरिंग वी मतलब एक जो सिंगल एज हर वर्टेक्स का इन डिग्री 1 है ट्री में मैंने बताया था. तो जो एज इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से ये एज इसके अंदर आ रहा है तो ये ऑफस्प्रिंग कहलाएगा. इसका मींस चाइल्ड, ऑफस्प्रिंग मींस चाइल्ड. सो दिस नोड 1 इसको मैं सपोज नंबर दे देती हूँ नोड 1 इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द रूट नोड R. Node 2 is the offspring of the node R. Node 3 is the offspring of the node R. And node 1 का parent R, node 2 का parent R, node 3 का parent R. A vertex V is considered the siblings of all the vertices at the same level with the same parent. मतलब 1 का sibling 2, 2 का sibling 3, मतलब 1, 2, 3 siblings है, मतलब भाई बहन है. ये तीनों भाई बहन है. एक तीनों जिनका पेरेंट सेम रहता है वो सिबलिंग्स कहलाते हैं. तो ये एक 1 का पेरेंट जो है वो R है, 2 का पेरेंट भी R है, 3 का भी पेरेंट R है और ये 1, 2, 3 जो है ये R के ऑफस्प्रिंग है. तो ये 1, 2, 3 क्या कहलाएंगे? आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है? 1 और 2 का, 1 और 3 का, 2 और 3 का, 3 और 1 का, दैट देयर आर सिबलिंग्स. इनको क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स. A vertex V2 is considered a descendant of the vertex V1 if there is a path from V1 to V2. Descendant मतलब उससे नीचे जा रहा है. R से नीचे 1 गया तो ये descendant हुआ. यहाँ पर अगर मैं इसको नंबर देती हूँ, this is 4, this is 5, this is not 6, this is 7, this is 8, this is 9, 10, 11, 12, 13, 14. I'm just numbering these so that we can identify each vertex. 16, 17. So let's see what do you mean by descendant. V2 is considered a descendant of the vertex V1 if there is a path from V1 to V2. V1 से V2 का पाथ है तो वो उसका descendant कहलाएगा. 1 से लेकर 4 तक का पाथ है तो 4 is called as a descendant of 1. 5 is called as the descendant of 1. 6 is called as descendant of 1. 8 is called as descendant of 2. 11 is called as descendant of 3. 15 is called as descendant of 7. 14 is called as descendant of 5. Descendant, this descendant if there is a path from V1 to V2. Height of a tree is the number of the largest level. What is the height of the tree? Tree की कितनी height है? जो इसका largest level है, that is level is 3. So the height of the tree is 3. Then the vertex of a tree that have no offspring are considered as leaves. The vertex which is having no offspring, 4 का कोई भी offspring नहीं है तो it is leaf. 17 का कोई भी offspring नहीं है, 13 का कोई भी offspring नहीं है, कोई भी child नहीं है तो leaf. 14 leaf node है. Then 6 is also a leaf node. This is 15 is leaf node. 8, 9. Then 10, 11, 16 and this is 17 is also
leaf node. So these are the leaf nodes. If the vertex of a level of a tree can be ordered from left to right, then the tree is an ordered tree. Okay. If the vertex of a level of a tree can be ordered from left to right, अगर left to right अगर वो ordered है, मतलब एक के बाद एक है, देखो यहाँ से लेफ्ट टू राइट ऑर्डर्ड है, तो वो ऑर्डर्ड ट्री कहलाएगी. लेफ्ट से शुरू करो, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, then it is called as an ordered tree. If every vertex of a tree has at most n offspring, then the tree is considered an n tree. n offspring मतलब अगर 2 है तो 2 ट्री कहलाएंगे बाइनरी ट्री. अगर 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो 3 ट्री कहलाएगी. 4 चिल्ड्रन है तो 4 ट्री कहलाएगी. मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं इसमें? r को 3 है, 1 को भी 3 है, 2 को भी 3 है, 3 को भी 3 है, तो मैक्सिमम 3 है, तो ये 3 ट्री कहलाएगी. अगर सिर्फ 2 ही होते तो वो 2 ट्री. 2 ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइनरी ट्री. जैसे ऐसा वाला ये एग्जाम्पल है. तो मैक्सिमम कितने हुए? 2 हुए. इस केस में कितने हैं? दिस इज कॉल्ड एज 2 ट्री. 2 ट्री मीन्स बाइनरी ट्री. 2 tree is also called as binary tree, and this is an example of 3 tree. Maximum number of children. If every vertex of a tree with offspring has exactly n offspring, then the tree is considered a complete entry. मतलब exactly जितने उसको offspring चाहिए उतने पूरे हैं तो वो complete entry कहलाएगी. complete tree, ये सब definitions अगर आपने data set में पढ़ा हो तो उसमें already थी. complete entry मतलब उसका हर लेवल फुल है. ये यहाँ पर 2 नोड चाहिए थे इसको, 2 नोड अगर इसके पास में है, ठीक है. यहाँ पर अगर इसको 2 नोड चाहिए तो 2 नोड है इसके पास में, यहाँ 2 नोड चाहिए तो 2 नोड है, हर लेवल जो है वो फुल है. देन दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. और कंप्लीट ट्री वो होगा जितने उसमें मैक्सिमम नोड है. जैसे यहाँ पर 3 है, ठीक है, लेवल फुल हो गया. यहाँ 3 है, लेवल फुल हो गया. ये भी लेवल फुल हो गया. और यहाँ पर भी लास्ट लेवल जो है उसमें भी 3 नोड है. देन इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट एंट्री. सी हियर. If every vertex of a tree with offspring has exactly n offspring, then the tree is considered a complete entry. When n equal to 2, that is called a binary tree. If n equal to 2, then that is called as a binary tree. Now let's see the example. If the set A is equal to A, B, C, D, E represents all of the vertices of a tree T, what is the maximum height of T? What is the minimum height of T? मतलब एक A set है and that is represents all of the vertices of a tree. इसको हमने tree के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? तो what is the maximum height of the tree and what is the minimum height of the tree? मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है ट्री की? तो जैसे देखो हम लोग पहले मैक्सिमम हाइट निकालते हैं. एक मेरा रूट है A, ठीक है. देन उसका चाइल्ड हुआ B, B का चाइल्ड हुआ C, C का चाइल्ड हुआ D, D का चाइल्ड हुआ E. ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है. 0 level, 1 level, 2 level, 3 level, 4 level. That is the height of a tree is 4 in this case. That is the maximum height. मिनिमम हाइट के लिए ये एक रूट एक ही रह सकता है. रूट में कितने रह सकते हैं? एक ही रह सकता है. और ये सारे के सारे इसके चाइल्ड नोड्स हैं, B, C, D, E. तो मिनिमम हाइट कितनी होगी? 1. Height of the tree is 1 and height of the tree is 4 in this case. So the maximum height of the tree is 4 and the minimum height of the tree is 1. If the set A is A, B, C, D, E, represent all of the vertices for a tree T and T is a complete binary tree. आप क्या definition बोला है? Complete binary tree. Complete binary tree means binary tree maximum number of node 2.
और कंप्लीट मतलब हर लेवल फुल होना चाहिए. सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री. तो सपोज अगर मैंने ये ए बनाया, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही नोड हो सकते हैं. इसके चाइल्ड नोड्स बी सी. बी के अंदर कितने हो सकते हैं, डी, और यहाँ पर एक बना देते हो, या तो यहाँ पर बना लो डी ई. ठीक है, ये नहीं है. बी सी ए बी सी डी ई. ओके, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये लास्ट लेवल को छोड़ के ऊपर तक के पूरे लेवल कंप्लीट फुल है. यस, क्योंकि और नोड है ही नहीं ना यहाँ फिल करने के लिए, है ही नहीं. तो ये इसका भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है. तो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. बाइनरी 2 ही हो सकते थे इस लेवल पर, और नहीं हो सकते थे, एक और नोड नहीं आ सकता था. और बचे कितने, 2 यहाँ पे. तो टोटल 5 ही है, 1 2 3 4 5. 5 को हमने से रिप्रेजेंट किया. दिस इज एट लेवल 1, दिस इज एट लेवल 2, and A is at level 0. So the height of the tree is 2. So that is the height of the, what is the maximum height of the tree? It is 2. Okay. If every path from the root of a complete 4 tree has 3 levels, how many leaves does this tree have? Okay, now let's make that. कितने ट्रीज हो सकते हैं, 4 ट्री. 4 ट्री मतलब कितने मैक्सिमम नंबर नोड हो सकते हैं एक चाइल्ड को, एक रूट को? 4. 1 1 2 3 4. बी सी डी ई. ठीक है, ये 4 ट्री हो गया. हैज 3 लेवल्स, ये देखो. एंड एट दैट टू इट इज कंप्लीट. देखो ये कंप्लीट है. तो यहाँ पर 1 2 3 4. फिर यहाँ पर 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ठीक है. So maximum number of nodes will be, this is level 1, this is level 2, and next is level 3. next level 3 में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर भी 4. 1 2 3 4. अब इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला के साथ में कैलकुलेट करते हैं. देखो लेवल 1 में this is 4 to the power of 0, that is 1. ये फॉर्मूला है 4 to the power of L. 4 ट्री है ना, तो 4 to the power of L. बाइनरी ट्री में 2 to the power of L बताया था, यहाँ 4 to the power of L क्योंकि 4 ट्री है. नेक्स्ट लेवल पे कितना होगा, 4 to the power of 1. फर्स्ट लेवल है, तो यहाँ कितने मैक्सिमम नंबर नोड्स हो सकते हैं, 4 to the power of 1. मतलब लेवल 0 पे कितने नोड्स हो सकते हैं, 4 to the power of 0, which is equal to 4, which is equal to 1. लेवल 1 पे कितने नोड्स हो सकते हैं, 4 to the power of 1, that is 4. देन लेवल 2 पे कितने हो सकते हैं, 4 to the power of 2, that is 4 4 जा 16. सेकेंड लेवल पे 16. देखो 16 है यहाँ पे, 4 4 8 12 और 4 16. लेवल 3 पे 4 to the power of 3. 4 to the power of 3 means 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. कितना हो गया टोटल, ये 20 74 84 85. This is 85. So the total number of nodes, which is maximum number of nodes in a 4 tree complete binary tree, is 85. 1 plus 4 5, 5 plus 16 21, 21 plus 64 85. So 85 will be the maximum number of nodes in the 4 tree having level 3, complete 4 tree which has 3 levels. What is n for the following entry? अब इस एंट्री के लिए n की वैल्यू कितनी है, n ट्री का कितना है, n. 1 से कितने बन रहे हैं, देखो 1 से कितने बन रहे हैं मैक्सिमम, 1 से कितने बन रहे हैं, 1 0 है, 0 से कितने बन गए, 17. फिर नेक्स्ट 1 से कितने बन गए, 17. फिर नेक्स्ट 1 से कितने बन गए, 17.
So how many are there? 17. So the tree is n is 17 over here. 0 to 16. 0 is also included. Okay. One more example. Let T be a complete entry with 125 leaves. What are the possible values of n? What are the possible values for the height? This is the assignment. You do it, solve it and tell me tomorrow. If take a screenshot. अगर T जो है एक ट्री है, कंप्लीट n बाइंडेड ट्री है और उसको 125 लीव्स हैं, मतलब मैं कहाँ पर हूँ? ये थर्ड लेवल जो है, यहाँ पर अगर हम आ गए तो ये थर्ड लेवल पे कितनी लीव्स आएंगी? इस पे ये आई 64. ठीक है, तो 125 अगर लीव्स आ रही है एन ट्री में, तो ये n की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 125 अगर आ रही है तो, ठीक है, यहाँ पर अगर 125 आ रही है तो ये 2 टू द पावर का फॉर्म आ रहा है, 3 की पावर का फॉर्म आ रहा है कि 4 की पावर का फॉर्म आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी है एंड व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ द ट्री. Okay, now this ends the today's session and I am stopping the recording.